Hello friends, in today's video we are going to discuss the policy that has been given by CBSE to calculate the marks of class 12 board. As we all are aware that CBSE cancelled its exam for class 12 on 1st of June 2021. And now CBSE has given a policy on how the marks will be calculated. So in this video we are going to discuss step by step all the directions that have been given by CBSE regarding this. As you can see the notification that this policy that is for tabulation of marks for class 12th board examination 2021 that has been given just to make the students and teachers aware how they have to compute the result of class 12th board examination. So the background is all COVID-19 pandemic that has created such kind of situation in the country. And to maintain the health, safety, and the future of our students, CBSE has cancelled the examination. And it is also mentioned in its policy the challenges before CBSE and objective of the policy. Here, we will discuss the mode of assessment of theory examination. As per the information available, schools have conducted different types and numbers of test exams of class 12 for the session 2020-21. Yes, अलग अलग स्कूल्स ने क्या किया है कि अलग अलग टाइप के टेस्ट कंडक्ट किए हैं. कुछ ऑनलाइन मोड में हुए हैं, कुछ ऑफलाइन मोड में हुए हैं. कुछ स्कूल्स ही अपने टेस्ट्स को ऑफलाइन मोड में करवा पाए हैं, अदरवाइज जो है वो ऑनलाइन मोड में ही रहे. तो सीबीएसई का ये मानना है, जो कि वास्तव में सच भी है, कि ये जो टेस्ट, ये जो असेसमेंट हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. एंड क्योंकि वो स्कूल की एक पर्टिकुलर सुपरविजन में भी नहीं हुए थे, सो हम उस परफॉर्मेंस जो है उस टेस्ट में स्टूडेंट्स की, उसको भी रिलायबल नहीं मान सकते. दैट डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एट होम ऑल्सो. एंड इसके लिए हम जो है ओवरऑल सिर्फ 12th के टेस्ट्स को 12th के मार्क्स कैलकुलेशन के लिए काउंट नहीं कर सकते. सो CBSE हैज टेकन 3 elements: class 12th, class 11th and class 10th. Then CBSE discusses the element first, that is class 12th. क्यों क्लास 12th को इंक्लूड किया है एंड क्यों पूरी तरह से सिर्फ क्लास 12th को ही क्यों नहीं लिया गया है? इन दिस रिगार्ड CBSE says that the first element in the assessment of for class 12th are the results of unit test, midterm exam, pre-board examination conducted by schools. फर्स्ट एलिमेंट ये रहेगा. Due to the nature of the online examination from homes and differential access to digital infrastructure, solely relying on these schools is not prudent for two regions. क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंशियल एक्सेस है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इस वजह से पूरी तरह से सिर्फ इस पर ही रिलाई नहीं कर सकते हैं हम. ये दो रीजन्स क्या है? First, the result of online examination held this year may not truly reflect the performance of students, as these were not in similar setting for all. एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल एक्सेस टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब स्टूडेंट्स के लिए इन एग्जाम्स में सिमिलर सेटिंग नहीं थी. सबके पास जो है डिवाइस की अवेलेबिलिटी जो थी वो अलग अलग तरह से थी. कुछ स्टूडेंट्स के पास डिवाइसेस का एक्सेस था, कुछ के पास नहीं भी था, लिमिटेड भी था. And second, these examinations, not being board examinations conducted by CBSE, will not meet the goal of standardized assessment and may also reflect subjectivity inherent in school-based assessments. स्कूल का अपना असेसमेंट है, स्कूल अपने अकॉर्डिंग इन टेस्ट को कंडक्ट कराता है. टीचर्स की जो एवेल्युएशन की प्रोसेस है वो भी डिफरेंट हो सकती है. एंड इस वजह से इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, to address these two concerns, the class 12th school based assessment need to be supplemented by standardized examination conducted in pre-COVID time. और इसी वजह से डिसाइड हुआ है कि ये जो दो जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स फेस हुई है, दो रीजन्स है, इसकी वजह से क्लास 12th के रिजल्ट का, क्लास 12th के असेसमेंट को सप्लीमेंट किया जाना जरूरी था किसी एक ऐसे स्टैंडर्ड टेस्ट के थ्रू जो प्री कोविड टाइम में हुआ था. यानी कोविड के टाइम से पहले इन बच्चों ने जो भी टेस्ट लास्ट दिया था, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट, उसको लिया जाना जरूरी था, क्योंकि आज के टाइम में जो है वो इनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं मानी जा सकती. And to obtain a holistic, fair and precise and unbiased assessment of the students, additional information of the performance by the same
स्टूडेंट विल हेल्प इन ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स विच आर मोर एक्यूरेट। और इसके लिए सीबीएसई ने क्लास 12th के अलावा लिया है क्लास 10th। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन हेल्प फॉर द करंट कोहॉर्ट ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स फिट द रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन करंट जो बच्चे हैं इन्होंने कौन सा दिया था, इन्होंने क्लास 10th का ही दिया था, और इसलिए इस एग्जाम को हम मान सकते हैं कुछ हद तक स्टूडेंट्स की एबिलिटी का एक जो है रिफ्लेक्शन। दिस वाज द ओनली पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड फॉर एक्चुअल ईयर एंड असेसमेंट जो इन बच्चों ने दिया था when conditions were normal and the examinations were conducted in a regular standardized manner without any deviation from the scheme announced by the board. Yes, कि पिछले साल भी बोर्ड के कुछ एग्जाम्स डिस्टर्ब हुए थे, बट इन बच्चों ने, आज के 12th के बच्चों ने जब अपने 10th में एग्जाम दिए थे वो एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम थे। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, हाउएवर इट इज लाइकली दैट अ स्टूडेंट मे नॉट हैव बीन इक्वली इंटरेस्टेड इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th। अक्सर होता है जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड होता है वो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक एसएसटी उनसे थोड़ा दूर भागता है, जो ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्टेड बच्चा है वो साइंस या मैथ से थोड़ा डरता है। तो बच्चे एक सा इंटरेस्टेड नहीं होते सब सब्जेक्ट्स में, एंड मे हैव अंडर परफॉर्म्ड इन अ फ्यू सब्जेक्ट्स। हो सकता है उन्होंने अंडर परफॉर्म किया कुछ एक सब्जेक्ट में। Since the students did not know at the time of taking class 10th board examination that these marks will count toward the all important class 12th results, बच्चे बिल्कुल नहीं जानते थे अपने क्लास 10th के टाइम में कि यही मार्क्स उनकी क्लास 12th में भी काम आने हैं। So some of the shortcomings can be overcome by using the scores obtained in theory exam average of best 3 subjects out of main 5 subjects for the purpose of calculating the marks. Yes, यहाँ क्या है कि इस वजह से सीबीएसई ने ये देखा है कि क्योंकि सब बच्चे, सब चीजें एक से नहीं होती है, कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड थे, कुछ बच्चे किसी सब्जेक्ट में, इसलिए हर एक बच्चे का जो आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट जो बेस्ट 3 स्कोर होगा उसका एवरेज बना लिया जाएगा, और क्लास 10th का जो पार्ट है उस पार्ट में उसी हर सब्जेक्ट के अंदर उसी एवरेज को ही रिफ्लेक्ट हो। मतलब जो बच्चे ने, अगर किसी स्टूडेंट ने अगर हिंदी एसएसटी एंड इंग्लिश में बेस्ट परफॉर्म किया, साइंस और मैथ्स में वो थोड़ा सा पीछे रहा है, तो उसके हिंदी एसएसटी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को टोटल करके आउट ऑफ 80 जो उसने स्कोर किया था उसको टोटल करके और क्या किया जाएगा, उसका एवरेज निकाला जाएगा। और अब जब आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होगे क्लास 12th के, तो 30% वेटेज इसी को ही दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है 2 एडिशनल कंसर्न्स रिमेन विद इंक्लूजन ऑफ क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट्स। 2 कंसर्न फिर भी रह जाते हैं। फर्स्ट, दैट द स्टूडेंट्स एबिलिटी मे हैव इवॉल्व्ड सिंस व्हेन द क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स वर हेल्ड। अक्सर ये होता है बच्चा क्लास 10th में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसकी एबिलिटी उसकी पर्टिकुलर मनचाही स्ट्रीम मिल जाने पर इवॉल्व भी होती है। Second, the best 3 subjects in class 10th board may not coincide with the subjects being taught and assessed in this class 12th। कई बार क्या होता है कि बच्चा हो सकता है उसके क्लास 10th के जो सब्जेक्ट्स हो वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हो जिसमें उसने हाईएस्ट मार्क्स लिए हो, लेकिन क्लास 12th में बच्चा जो है वो साइंस को परस्यू कर रहा हो। तो ऐसे में उसके सब्जेक्ट्स डिफर हो रहे हैं, तो ये एक फेयर जजमेंट नहीं होगा कि साइंस स्ट्रीम के रिजल्ट के लिए आप ह्यूमैनिटीज के रिजल्ट को देख रहे हैं। और इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स की वजह से क्या किया, क्लास 11th के रिजल्ट को इंक्लूड कर लिया गया। इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल टू इंक्लूड क्लास 11th रिजल्ट, क्योंकि यही जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम था जो कि एक अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन सेटिंग में कंडक्ट हुआ था। मतलब लगभग क्लास 11th के एग्जाम्स जो लास्ट ईयर थे वो लॉकडाउन से पहले हो चुके थे, और इसी वजह से क्या है कि क्लास 11th के मार्क्स को इंक्लूड किया जा रहा है, फाइनल एग्जाम के थ्योरी मार्क्स को इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि ये वो रिजल्ट है जो कि बच्चे ने क्या किया था कि बच्चे ने अपने सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अपनी प्रेफरेंस के सब्जेक्ट में लिया था। तो अगर हम यहाँ देखते हैं इश्यूज हैव बीन ब्रोट टू द नोटिस, किस चीज के लिए, कि कई बार क्या हुआ है कि कुछ टीचर्स ने स्कूल लेवल पर टफ मार्किंग की, और उस टफ मार्किंग की वजह से हो सकता है क्लास 11th में बच्चों का स्कोर थोड़ा लेस हुआ, तो वो मॉडरेशन कमेटी
इशू को जो भी रिजल्ट कमेटी बनेगी वो उसको हैंडल करेगी। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम ऐसी है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को क्लास 11th में फुली यूटिलाइज नहीं करते, मतलब बच्चे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं क्लास 11th को, तो होली क्लास 11th के मार्क्स को भी नहीं लिया जा सकता। मतलब तीनों मार्क्स में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है बट कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं, इसलिए सीबीएसई ने क्लास 10th 11th एंड 12th के मार्क्स को कंबाइन किया है। एंड इन सम क्या हुआ, कंक्लूजन ये है, द असेसमेंट ऑफ क्लास 12th शुड बी कंप्लीट मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन स्कूल बेस्ड परफॉर्मेंस इन क्लास 12th एंड क्लास 11th एग्जाम, एंड उसकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन थे उसके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस को लेगा। अभी असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जामिनेशन 20 मार्क्स 30 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो रहेंगे। क्लास 12th की बाइफर्केशन जो है स्टूडेंट्स को एंड टीचर्स को अच्छी तरह से पता है किन सब्जेक्ट्स में जो है वो 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के और 80 मार्क्स थियरी के हैं, किन सब्जेक्ट्स में 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। तो यहाँ दिया गया। उसके बाद एक चीज जो यहाँ सीबीएसई ने मेन बताई है कि क्लास 12th का जो इंटरनल एग्जाम्स का यानी कि स्कूल बेस्ड एग्जाम का जो रेशियो रहेगा फाइनल कैलकुलेशन में 40% रहेगा, क्लास 11th का 30% रहेगा, और क्लास 10th के जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होगा उसका रेशियो 30%। ये कैलकुलेशन हम आगे ढंग से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड असेसमेंट इट्स कंपोनेंट्स जो है उसमें बताया जा रहा है कि सपोज आपका फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का होता है, जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके फाइनल एग्जाम्स 80 मार्क्स के होते हैं, तो उसमें 24 मार्क्स क्लास 10th के एग्जाम्स के जुड़ेंगे, 24 मार्क्स जो है वो क्लास 11th के, और 32 मार्क्स क्लास 12th के एग्जाम के जुड़ेंगे। और सेम वे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 30 का होता है, वहां 70 का जो थ्योरी एग्जाम रहेगा उसमें क्या रहेगा, 21 मार्क्स जो है वो थ्योरी एग्जाम्स के होंगे 10th क्लास, 21 मार्क्स 11th क्लास, और 28 मार्क्स जो है वो रहेंगे क्लास 12th के। और ये 28 मार्क्स के अलावा यहाँ क्या होगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आ जाएंगे, यानी टोटल 58 मार्क्स हो गए क्लास 12th के। तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं इस चीज को कि ये तो थ्योरी के एग्जाम में है, यहाँ 20 मार्क्स और जुड़ेंगे इंटरनल असेसमेंट के, यहाँ 30 मार्क्स और जुड़ेंगे प्रैक्टिकल के, यहाँ 40 मार्क्स और जुड़ेंगे। तो ये एक परसेंटेज का रेशियो रहेगा। और अभी बात आती है कि कंपटीशन कैसे किया जाएगा थ्योरी मार्क्स का। क्लास 12th की थ्योरी मार्क्स के लिए अगर हम देखते हैं तो स्कूल चाहे तो किसी एक एग्जाम को ले सकता है, जैसे कि किसी एक प्री बोर्ड को ले लिया और पूरा का पूरा जो 40% का वेटेज है वो उसी को दे दिया, या स्कूल चाहे तो 2 टेस्ट ले सकता है, 3 टेस्ट ले सकता है और उनको पर्टिकुलर वेटेज दिया जा सकता है। ये मॉडरेशन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी। 11th के थ्योरी मार्क्स में क्या कहा गया है, कंप्यूटेशन ऑफ क्लास 11th थ्योरी मार्क्स शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंड फाइनल थ्योरी एग्जाम इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी मैथ्स के मार्क्स के लिए क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स के जो सेशन एंडिंग एग्जाम होते हैं उसके मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे, और साइंस की सॉरी केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश हिंदी इन सबके एग्जाम्स के लिए वही देखे जाएंगे। और क्लास 10th की थ्योरी का, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं का एवरेज आपके हर सब्जेक्ट में जोड़ दिया जाएगा। तो ये आपके कंपटीशन ऑफ रिजल्ट के बारे में, अलग अलग एरियाज के बारे में हमने डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिजल्ट कमेटी वगैरह बनेगी एंड कैसे वो रिजल्ट को प्रिपेयर करेगी उनको देखेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो भी फंडा है रिजल्ट कैलकुलेट करने का ये समझ आया है। थैंक यू।